बच्चे स्क्रीन दिख रही है, देखो सारे। हाँ यस जी सर दिख रही है। यस सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चे, आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है। तो सब तो पहले आप करांगे नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज कि अपन गाइडेंस सर्विसेज की क्या जरूरत है, क्यों अपन ने ऑर्गेनाइज करना है। बच्चे आवाज आ रही है मेरी? देखो सारे जने। हाँ जी यस सर सर आ रही है। सर हाँ, आ रही है सर। ठीक, ठीक है, गुड। तो सब तो पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स द टीचर्स टू टेक नोट ऑफ पोटेंशियलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट इन डिफरेंट डिग्री इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सब तो पहला क्यों जरूरत है ऑर्गेनाइज करने की गाइडेंस सर्विसेज, ताकि जो टीचर है उसको ये पता लगता है कि क्या पोटेंशियलिटीज हैं हर बच्चे दियाँ, किस डिग्री दियाँ ने और किहड़ी-किहड़ी डायरैक्शनस है, मतलब किहड़ी-किहड़ी फील्ड दे विच किन्नियां-किन्नियां पोटेंशियलिटीज बच्चे दे विच है, उन्हां चीज़ां दे बारे पता लगता है जदों आपां ऑर्गेनाइज करते हैं गाइडेंस सर्विसेज स्कूल दे विच। सेकंड है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स and their parents to take right and appropriate career plans for future। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਦ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦ ਪਿਊਪਲਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਔਨ ਪਿਊਪਲਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡ नहीं कर सकांगे। ठीक है बच्चे, 4 पॉइंट समझ आ गए? हाँ जी सर। गुड। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू चिल्ड्रन इन मेकिंग सैटिस्फैक्टरी एडजस्टमेंट इन द स्कूल एंड द कम्युनिटी। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, a well organized guidance program saves time, money and effort। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ गाइडेंस प्रोग्राम है, अगर आपने उसको सही तरीके दे नाल ऑर्गेनाइज करिया है तो उसके नाल साडा टाइम, मनी और एफर्ट हर एक तरह का जिहड़ा वो सेव होंदा है। क्योंकि आप अगर सही प्लान बनाया है, सही तरीके दे नाल गाइडेंस सर्विसेज नू ऑर्गेनाइज करिया है तो आप बच्चे नू वधिया तरीके दे नाल आपां जदों गाइड करते हैं तो फिर साडा टाइम बचदा है, बच्चा फिर गलत रस्ते ते नहीं चलता। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੀ, ਐਫਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੁਟੇਬਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे ने अपना ऑक्यूपेशन या वोकेशन जो अगर वो गलत चूज कर लिया तो फिर बच्चा उसके सक्सैसफुल नहीं होएगा और उसके फेल हो जाएगा। जिमें ਆਪਾਂ अगर एजुकेशनल की गल करी जाए तो अगर बच्चे ने अपनी जी स्ट्रीम है अगर वो गलत चूज कर ली, मान लो साइंस नहीं आती और लेकिन बच्चे ने साइंस सिलेक्ट कर लिया, तो फिर क्या होएगा, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, सक्सेसफुल नहीं होएगा। ठीक है ना। इस करके प्रॉपर सिलेक्शन, चाहे वो एजुकेशनल कोर्स है, कोई स्ट्रीम है, ऑक्यूपेशन है, वोकेशन है, उसका सही सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। It helps teachers to understand the individual differences of the children in various affairs। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਸਫੇਅਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। हो सकता है कोई बच्चा मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा है, कोई बच्चा साइंस अच्छा है, कोई बच्चा इंग्लिश अच्छा है, कोई बच्चा म्यूजिक अच्छा है, कोई बच्चा गेम्स अच्छा है। तो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ध्यान दे विच रखते हुए ही आप ऑर्गेनाइज करिए। नेक्स्ट है इट कैन प्रॉपरली यूटिलाइज स्किल, ट्रेनिंग, नॉलेज, पोटेंशियलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टाफ मेंबर्स ऑफ द स्कूल। देखो गाइडेंस प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज करना है तो ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है अगर ਜਿਹੜਾ स्टाफ मैंबर्स हैं जिन्ने भी इन्वॉल्व हैं उसके विच वो सारे अपना ट्रेनिंग, स्किल, नॉलेज, पोटेंशियलिटी और पूरे इंटरस्ट के नाल वो अगर काम करनगे, अपनी नॉलेज नू प्रॉपरली यूटिलाइज करनगे तां ही जिहड़ा है वो गाइडेंस प्रोग्राम वधिया हो सकता है। नेक्स्ट है इट कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ ऑल पर्सनस इंगेज्ड इन द गाइडेंस प्रोग्राम। क्या करता है गाइडेंस प्रोग्राम दे विच जिन्ने भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे गाइडेंस वर्कर है, प्लेसमेंट सर्विसेज है, जिन्नियां भी स्कूल दे जिन्ने भी परसनस इन्वॉल्व है वो सारियां दी आपस दे विच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ਜਦੋਂ तक वो कोऑर्डिनेट नहीं करनगे उदों तक जिहड़ा गाइडेंस प्रोग्राम है वो वधिया नहीं होएगा। बच्चे समझ आया ये वाले सारे पॉइंट? अगर कोई समझना इन्हां च तो पूछो, अगर नहीं समझ आया था आगे सर। चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट है इट यूटिलाइजेस कम्युनिटी रिसोर्सेज प्रॉपरली फॉर इंश्योरिंग स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। देखो ये पॉइंट आप पहला भी कराया हुआ है कि कम्युनिटी रिसोर्सेज नू आपां ने पूरी तरीके दे नाल यूटिलाइज करना है। हुण कम्युनिटी रिसोर्सेज ने है वो आप दो तरीके दे नाल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप पहला भी गल करी हुई है, या तो स्कूल नू कम्युनिटी रिसोर्सेज तक ले जाया जा सकता है या कम्युनिटी रिसोर्सेज नू आप स्कूल तक ले आया जा सकता है। जो आपने गल करी कि स्कूल नू कम्युनिटी रिसोर्सेज तक लेके जाना है तो इसका मतलब है कोई टूर, विजिट, म्यूजियम, बैंक कोई दिखाना है, ठीक है ना, तो ये सारिया कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री दिखानी है बच्चों को, तो ये सारिया चीज़ा आप बच्चों को कम्युनिटी च ले जाके दिखाई जा सकती। और दूसरा जो आपने गल करी कि कम्युनिटी रिसोर्सिस नू स्कूल च लैके आना है तो इत्थे आएगा कि जिहड़े कम्युनिटी के जिहड़े एक्सपीरियंसड परसन है समाज दे विच जिहड़े साडे लोग रह रहे हैं, स्किल्ड परसन है, एक्सपीरियंसड परसन है, उन्हां नू
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਸਕੇ। नेक्स्ट है इट हेल्प द स्टूडेंट्स इन अचीविंग सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाइडेंस प्रोग्राम का मेन मोटिव यही हुंदा है कि बच्चा जिहड़ा है उस दे विच यह स्किल डिवेलप करनी है कि बच्चा अपने आप को खुद डिवेलप कर सके। सेल्फ डायरेक्शन, बच्चा अपने आप चूज कर सके कि उसने केड़ी डायरेक्शन दे वल जाना है। सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चा अपने आप को अच्छी तरह नाल पहचान सके कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज ने, क्या क्या है, ठीक है, वो सारा कुछ जो बच्चा है वो अपने आप को पहचानेगा। नेक्स्ट है इट कंसीडर्स द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ द पर्सनल इंगेज्ड इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। यह क्या करता है कि हाँ बच्चे आप कर रहे सीगे इट कंसीडर्स द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ द पर्सनल इंगेज्ड इन द स्कूल गाइडेंस सर्विसेज। इस दे विच आपां क्या करते हैं कि जो भी इंगेज्ड पर्सनस हैं, जो भी इनवॉल्वड पर्सनस हैं स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम दे विच या सर्विसेज दे विच, उन्हां सारियां दियां एक्टिविटीज़ नूं, उन्हां सारियां दे फंक्शनस नूं कि वो क्या क्या काम करते हैं, इन्हां चीज़ों नूं अपने बड़े ध्यान नाल देखना है। इट हैल्प्स इन डिवेलपिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस। देखो गाइडेंस सर्विसेज उदों तक, गाइडेंस प्रोग्राम उदों तक सक्सैसफुल वधिया नहीं हो सकता जदों तक साडे जिहड़े रिलेशंस हैं लोकां दे नाल वो वधिया ना हो। एक दूसरे के नाल कोऑपरेट करना है, एक दूसरे नाल मिल के रहना है, गाइडेंस प्रोग्राम तां ही वधिया होएगा और रिलेशनशिप जिहड़े हैं वो वधिया अपने रखने हैं। बच्चे समझ आए सारे पॉइंट्स? ये सीगा साडा नीड फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम, भी आपां नूं क्यों आपां ऑर्गेनाइज करना है गाइडेंस प्रोग्राम स्कूल या कॉलेज दे विच। दसो अगर कोई पॉइंट इत्थे तक नहीं समझ आया तो फिर आपां रिपीट कर लांगे। नो सर। समझ आया सारे नूं? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड, ठीक है ना। गूगल क्लासरूम में ही आप लोगों ने अपलोड करनी है असाइनमेंट। Okay, sir. Sure, sir. ओके बच्चे सर। हाँ बच्चे क्लियर है ना सबको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ वेरी गुड। चलो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? नंबर 1, द गाइडेंस सर्विसेज शुड बी मीन्ड फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। गाइडेंस प्रिंसिपल क्या है? पहला कि ये जो गाइडेंस सर्विसेज हैं वो सभी बच्चों के लिए हैं, कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। ऑल द कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो बच्चा गिफ्टेड है, चाहे वो बच्चा एजुकेशनली बैकवर्ड है, अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट का है, उससे कोई मतलब नहीं है। गाइडेंस सर्विसेज सभी बच्चों के लिए। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम ऑफ एनी टाइप, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल, शुड बी डन in accordance with the interest, needs and purposes of the people। ਜਦੋਂ गाइडेंस सर्विसेज ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ एजुकेशनल गाइडेंस कर रहे हो, चाहे वोकेशनल गाइडेंस दे रहे हो, चाहे पर्सनल गाइडेंस दे रहे हो, तो वो सारी तरह की जी गाइडेंस है वो बच्चे के इंटरस्ट, नीड और उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने सारिया चीज़ों को ध्यान दे विच रखते हुए ही तुसी गाइडेंस प्रोग्राम नू ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द गाइडेंस सर्विस शुड कंसिडर द टोटल इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड while organizing guidance program for them। मतलब टोटल इन्वायरमेंट नू ध्यान च रखना है तुसी, जिस इन्वायरमेंट दे विच बच्चा रह रहा है, चाहे वो इन्वायरमेंट स्कूल का है, चाहे वो इन्वायरमेंट उहदे घर दा है, आस पास की सोसाइटी का है, वो पूरे सारे तरह के इन्वायरमेंट नू ध्यान दे विच रखते हुए ही आपां ने बच्चे नू गाइड करना है। बच्चे 3 पॉइंट समझ आ गए?
Yes, sir. मैं ये ग्रीन करते सी Yes, ताकि sir. ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर कीवर्ड समझ आ जाए। Yes, sir. ठीक है ना? गुड। नेक्स्ट है द गाइडेंस प्रोग्राम मे बी डिफरेंट in an industrial school from that of agriculture school। इसका मतलब इन्ना है कि ਜਿਹੜਾ गाइडेंस प्रोग्राम है वो स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा, एरिया टू एरिया वेरी करेगा, स्ट्रीम टू स्ट्रीम वेरी करेगा। जिवें एक एग्जांपल इत्थे लिखी है, कोई इंडस्ट्रीयल स्कूल है वो एग्रीकल्चर स्कूल नालों उसके गाइडेंस प्रोग्राम अलग तरह के होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अलग तरह के होंगे, रूरल स्कूल और अर्बन स्कूल के जो गाइडेंस प्रोग्राम्स हैं वो अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द गाइडेंस सर्विसेज शुड ट्रीट द प्यूपिल इन इट्स इंटायरिटी। इंटायरिटी जिहड़ा है वो इत्थे कीवर्ड है कि आपां ने बच्चे नूं कंप्लीटली ऑब्जर्व करना है। इंटायरिटी दे विच उसका एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट नहीं देखना, एक पर्टिकुलर स्पैसिफिक एरिया नहीं देखना कि जिहड़ा बच्चा है वह मैथ दे विच तां बहुत अच्छा है, साइंस दे विच बहुत अच्छा है, या इंटलैक्चुअली अच्छा है लेकिन सोशल अच्छा नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर या आपां कहांगे कि स्पैसिफिक फील्ड से नहीं देखना, आपां ने बच्चे नूं कंप्लीटली इंटायरली बच्चे नूं आपां ने देखना है, और बच्चे नूं इंटायरली देख के कंप्लीटली देख के फिर आपां ने बच्चे दे लई कोई गाइडेंस सर्विस आपां ने सजेस्ट करनी है या उस दे लई कोई गाइडेंस सर्विस आपां ने ऑर्गेनाइज करनी है। बच्चे पॉइंट समझ आया इंटायरिटी वाला? हाँ जी सर। Yes, sir. नेक्स्ट है वेरी गुड। नेक्स्ट है इट शुड आल्सो मीट स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। कई बार गाइडेंस सर्विसेज आपां नूं जनरल तो आपां ने गाइडेंस सर्विसेज दिंदे रहने हैं, लेकिन आपां कई बार बच्चे दियां स्पैसिफिक जरूरतां नूं भी ध्यान दे विच रखदे होए, स्पैसिफिक प्रॉब्लम्स नूं ध्यान दे विच रखदे होए आपां बच्चे नूं गाइड करदे हैं। नेक्स्ट है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज शुड बी स्टोर्ड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन जी है, सही इन्फॉर्मेशन और जरूरी जिन्नी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल है चाहे वो एजुकेशनल है, सारे तरह की जी इन्फॉर्मेशन है वो आपां ने प्रॉपरली स्टोर करनी है, इकट्ठी करके रखनी है। क्योंकि जदों तक साडे कोल इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं होएगी, सानू यही नहीं पता होएगा कि आने वाले टाइम दे विच बच्चे दे कोल किहड़ी-किहड़ियां अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तां फिर उदों तक आपां बच्चे नूं प्रॉपरली गाइड नहीं कर पावांगे। तां गाइडेंस प्रिंसीपल क्या है इहदे च कि आपां ने सही जानकारी, प्रॉपर जानकारी इकट्ठी करनी। नेक्स्ट है द गाइडेंस सर्विसेज शुड कोऑपरेट विद ऑल द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड फॉर लीडरशिप। एक कोऑपरेट जिहड़ा है ये इहदे च कीवर्ड है बच्चे, कोऑपरेट करना है। ये आप पहला भी करया है कि गाइडेंस सर्विसेज दे विच जिन्ने भी व्यक्ति इनवॉल्वड है उन्हां सारियां ने आपस दे विच कोऑपरेट होकर काम करना है, या जिन्नियां भी एजेंसीज अवेलेबल है वो सारियां एजेंसीज दे नाल मिल के काम करना। जिवें इंप्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होंदियां ने अपनियां, ठीक है ना, इंप्लॉयमेंट ब्यूरोज होंदे ने, वो सारे जिहड़े हैं उन्हां सारियां दे नाल मिल के काम करांगे तां ही वधिया गाइडेंस प्रोग्राम कर पावांगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल शुड बी डील्ड विद बिफोर दे बिकम सीरियस। देखो बच्चे की प्रॉब्लम नूं उदों ही आपां ने डील कर लेना है जदों हले प्रॉब्लम शुरू हुई है। आपां ने प्रॉब्लम नूं सीरीयस होने का वेट नहीं करना, ठीक है, उस तो पहले ही आपां ने बच्चे की प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, it should be directed towards improving pupils self knowledge and self direction। आप जो भी गाइडेंस प्रोग्राम आप करांगे उसका एक प्रिंसिपल ये है, आप उन्हें ऊपर भी कराया सी सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है ना, तो उसी तरह का रिलेटेड है सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ डायरेक्शन जिहड़ा है आपने बच्चे को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है। नैक्सट ये हाईलाइट कर दें सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ डायरेक्शन। नेक्स्ट है adequate provision should be made in guidance services for testing tools to be used in it। adequate provisions बनानी है ताकि ਜਿਹੜੇ testing tools हैं, देखो ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ गाइड कर पाने हैं अगर आप उनके बारे अच्छी तरह जानते हैं।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨੇਅਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। Next point, the interest and efforts of every member of the staff should be given topmost priority in the organization of guidance services. Interest and efforts of every staff member, ये बहुत जरूरी है कि जिन्हें भी staff members involved हैं सारे ध्यान नाल काम करन और पूरे efforts लगा के काम करन, ताही जिहड़ा guidance program है वो वधिया होएगा। And last point, principles ਦੇ ਵਿੱਚ it should be as simple as possible। गाइडेंस प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। No, sir. No, sir. ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ चलो गुड गुड, चलो बस आज इन्ना ही करांगे।